அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. आप इस चैनल का लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में बांटें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. खास करके हम हिंदी जब बोलते हैं तो अशुद्धियाँ करते हैं. हम अनजाने में करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में करते हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधा अनुवाद करने में अशुद्धियाँ पैदा होती हैं. इसलिए कहा गया है कि सीधा अनुवाद नहीं करना चाहिए. நாம் ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மொழிமாற்றம் செய்கின்ற பொழுது நேரடியாக மொழிமாற்றம் செய்யக்கூடாது. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு. அந்த சிறப்புக்கு ஏற்ப நாம் மொழிமாற்றம் செய்ய வேண்டும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன், நான் தங்களிடம் மடிப்பிச்சை கேட்கிறேன் என்று ஒரு பெண் சொல்வதனால் அது மிகச் சிறந்த அழகான வார்த்தை. கேட்பவர் மனதை உருகச் செய்கின்ற வார்த்தை. கேட்பவர் மனதிலே கருணையை எழுப்புகின்ற வார்த்தை. அதே வார்த்தையை ஹிந்தியிலே மொழிபெயர்க்கின்ற பொழுது மை अपने आंचल पसारती हूँ என்பார்கள். இது ஒரு வகையான பிரேசஸ் என்றால் கூட, முஹாவரா என்றால் கூட அதில் ஆழமான கருத்து இருக்கிறது. அது நாம் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கக்கூடாது. मैं आपके सामने आंचल फैलाती हूँ என்று சொல்கின்ற பொழுது நான் தங்களுக்கு முன்னால் மடிப்பிச்சை கேட்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி நேரடியாக மொழிபெயர்க்காமல் அந்த மொழியினுடைய தன்மையை அறிந்து அதற்கேற்ப மொழிமாற்றம் செய்ய வேண்டும். ஆகையாலே நாம் நேரடியாக மொழிமாற்றம் செய்வதன் மூலமாக சில தவறுகளை செய்கிறோம். அந்த தவறு அந்த மொழிக்கு ஊறு விளைவிக்கும். ஊருன்னா பெரிய ஊர் கிடையாது, இருந்தாலும் அது சரியானதல்ல என்று அறிஞர்கள் நினைப்பார்கள். ஆக கேட்பவர்க்கும் கேட்காதவர்க்கும் இனிய வார்த்தைகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்பார். சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல், சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் என்பார் வள்ளுவர். அதுபோல் இங்கே நாம் தூய்மையான வார்த்தைகளையே பேச வேண்டும். தூய்மையாகவே நாம் எழுத வேண்டும், பிழையின்றி எழுத வேண்டும். இங்கே நான் சில உதாரணம் சொல்லிக்கின்றேன். சரி, ராம் लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहती थी. राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहती थी. तो सीता வந்ததால் रहती थी என்று நாம் போட்டு பார்க்குறோம். ஆனால் அப்படி போடக்கூடாது. இங்கே சப்ஜெக்ட் எழுவாய் கர்த்தா என்னவென்று பார்க்க வேண்டும். இங்கே மூன்றும் இருக்கிறது. ராம் இருக்கிறார், லக்ஷ்மணன் இருக்கிறார், சீதா இருக்கிறார். ஆக மோரும் இருக்கின்ற பொழுது அப்பொழுது பொதுவான ஒரு எண் மட்டுமே இருக்க வேண்டும், ஒரு பால் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். எப்படி? ராம் सीता और लक्ष्मण अयोध्या में रहते थे வரணும். राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते थे. அதான் சரியானது. அடுத்தது, रमेश सुरेश और सीता पढ़ती हैं. रमेश सुरेश और सीता पढ़ती हैं இல்லை पढ़ते हैं, क्योंकि वे बहुवचन हैं. राम रमेश सुरेश और सीता पढ़ते हैं. ये पुस्तक मेरा है.
मेरा को अगर आप अलग करेंगे तो वहाँ पर कारक है मैं प्लस का। यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मैं प्लस की मेरी होनी चाहिए। ये पुस्तक मेरी है, यही सही है, मेरा गलत है। ये पुस्तक मेरी है। अच्छा, मौसम बहुत सुहावनी है। ஆஹா, சீசன் மிக அழகாக இருக்கிறது। मौसम बहुत सुहावनी है। सुहावनी है यहाँ पर ई की मात्रा बनाई गई है, लेकिन मौसम पुल्लिंग है, शब्द है, इसलिए यहाँ का मौसम सुहावना है। நீங்கள் கேட்கலாம், எப்படி சார் தெரியும் ஆண்பாலா பெண்பாலா என்று? அதற்கு சில வழிகள் உண்டு, நான் அதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன்। அப்படி தேவைப்பட்டால் அடுத்த பதிவிலே நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன்। எல்லாவற்றையும் விட நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும்। மனப்பாடம் என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் படிக்கின்ற பொழுது அந்த வாக்கியத்திலேயே நம்மளுக்கு அந்த அந்த சொல்லுடைய பால் வந்திருக்கும், அதை நாம் படித்து निனைவிலே கொள்ள வேண்டும்। याद कर लेनी चाहिए। यहाँ पर सुहावनी है आने से, सुहावनी है, कौन सी बात सुहावनी है? मौसम सुहावनी है। तो इसका मतलब है कि मौसम स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। मौसम स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द होता है। मौसम सुहावना है, सुहावना मौसम, ऐसा लिखना चाहिए। मौसम सुहावना है। लोकसभा की चुनाव इस साल होगी। लोकसभा की चुनाव इस साल होगी। यहाँ पर चुनाव आया है, इसलिए होगी आया है। चुनाव पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए लोकसभा का चुनाव इस साल होगा। लोकसभा தேர்தல் எலெக்ஷன் இந்த வருடம் இருக்கும்। लोकसभा का चुनाव इस साल होगा। लोकसभा का चुनाव इस साल होगा। हमारे सभी अध्यापकों अच्छी हैं। हमारे सभी अध्यापकों अच्छी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए शब्द को ओन के रूप में बदलने से बहुवचन होता है। ये खास तौर पर आम जगह पर सब लोग ऐसी गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। क्या करते हैं? आम आमों, कलम कलमों, पुस्तक पुस्तकों, कुर्सी कुर्सियों, पाठ पाठों, किताब किताबों, बाजार बाजारों, दुकान दुकानों, इस प्रकार सभी का वो लगाते हैं। ये गलत है, सर्वथा गलत है। कुछ नियम हैं। पहले पुल्लिंग शब्द को लीजिए। पुल्लिंग शब्द में जो आकारांत होते हैं, ஆவில் முடிகின்ற ஆண்பால் பேச்சுக்கள், जो पुल्लिंग शब्द आकारांत होते हैं, उन्हें उस आ को ये में बदलने से बहुवचन होता है। அந்த ஆவை ஏவாக மாற்றினால் பன்மையாகிறது। ஆவில் முடிகின்ற ஆண்பால் பேச்சுக்கள் கடைசியில் உள்ள ஆவை ஏ என்று மாற்றினால் பன்மையாகும்। இப்போ லடுக்கா लड़के, कपड़ा कपड़े, कमरा कमरे। आविल முடியாத அன்பால் பேச்சுக்கள், जो शब्द आकारांत नहीं होते, वे एकवचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। ஆவில் முடியாத அன்பால் பேச்சுக்கள் ஒருமையிலும் பன்மையிலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்। ये हाथ हाथ, हाथी हाथी, घर घर, पल पल, इस प्रकार बहुवचन भी समान होते हैं। अच्छा, अब स्त्रीलिंग शब्द है। ज़्यादातर अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द ஈகாரத்து होते हैं। பெரும்பான்மையான பெண்பால் பேச்சுக்கள் ஈயிலே முடியும்। இப்போ लड़की, नदी, खिड़की, टोपी, ईल முடியும்। जो स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होती हैं, उसको या में बदलने से बहुवचन होता है।
लड़की, लड़कियाँ, टोपी, टोपियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ। जो स्त्रीलिंग शब्द इकारांत नहीं होते उन्हें अंत में ये करने से बनते हैं. எந்த சொற்கள் ஈலே முடியாதோ அவற்றை அதை ஏ என்று மாற்றினால் அவை பன்மையாகும். गाय, गायें, इमारत, इमारतें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बात, बातें. इस प्रकार ए में बदलने से बहुवचन होता है. अच्छा, और बात यह है ये ओ कैसे आता है, क्यों आता है? वो किस लिए आता है? चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे ஸ்ரீலிங்க शब्द हो, ஒருமை ஆண்பால் பேச்சொல்லாக இருந்தாலும் பெண்பால் பேச்சொல்லாக இருந்தாலும் அது பன்மையாக இருந்து, अगर वो बहुवचन हो तो பன்மையாக இருந்து அடுத்தாற் போல ஏதானும் ஒரு வேற்றுமையுருவு வந்தால் அப்போதுதான் ஓ என்று மாறும். நம்ம சப்தமேனிக்கு எல்லாம் ஓ போடக்கூடாது. ஓ போடு, ஓ போடு போடக்கூடாது. बहुवचन शब्द के चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, बहुवचन के आगे उसके साथ एक कारक चिन्ह आवे, को या के या में कोई भी हो, पर्सन कहते हैं उसको, आवे तभी वो में बनता है. यहाँ पर देखिए हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं. यहाँ पर अच्छी है नहीं, अच्छे हैं. हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं. अच्छा, ये अध्यापक क्यों इसमें नहीं बदला? मैं पहले कहा था ना, जो शब्द पुल्लिंग शब्द आकारांत नहीं होते वे दोनों वचनों में समान होते हैं. अध्यापक, अध्यापक है. यहाँ पर हमारे सभी अध्यापकों अच्छी है नहीं, अच्छे हैं. उदाहरण के लिए अध्यापकों का आदर करो, आश्रयங்களுக்கு मर्यादा से. यहाँ पर अध्यापकों का आता है, का आने से यहाँ पर अध्यापक अध्यापकों में बदल जाता है. ठीक है ना? इसीलिए जब दोनों शब्द बहुवचन हो और उसके आगे अर्थ कोई कारक चिन्ह हो तो कभी वो में बदलता है, कभी भी वो में नहीं बदलता. अच्छा, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं, नॉट अच्छी हैं, अच्छे हैं. हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं. आप आपके 4 बेटे का नाम बताओ. आप कहते हैं इसलिए वहाँ पर बताओ नहीं आना चाहिए. ये विधि है, इंपरेटिव है, कटले में नहीं. अगर आप आएगा तो वहाँ पर ये आना चाहिए. वो बताओ नहीं, बताइए पहले. आप आपके நீங்கள் உங்களுடைய தமிழ் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுடைய 4 மகன்களுடைய பெயரை சொல்லுங்கள். आप यहाँ पर आपके 2 बार, ये आप 2 बार नहीं आएगा. ये याद रखिए, किसी भी वाक्य में सर्वनाम, सेम सर्वनाम, वही सर्वनाम एक साथ 2 बार नहीं आना चाहिए. 2 बार नहीं आना चाहिए सर्वनाम को. यहाँ पर आप, मैं, तुम नहीं आना चाहिए. वो, ये नहीं आना चाहिए. वहाँ पर अपना का प्रयोग करना चाहिए. इसलिए यहाँ पर आप अपने, क्योंकि 4 बेटे हैं ना, बहुवचन है ना, पन्मेदान है. सो अपने, आप अपने 4 बेटे. ओके, उसके बाद का आ गए ना, बेटा बहुवचन है, उस पर का आने से बेटे बेटों का नाम बताइए और बेटों के नाम बताइए. बेटों के नाम बताइए. काम उसमें कोई गलती नहीं है. नाम बताइए कि के नाम से ये नाम. आप अपने 4 बेटों के नाम बताइए. बताओ नहीं, बताइए. याद रखना है. देखने में वो शुद्ध लगता है लेकिन
शुद्ध नहीं रहे, वो अशुद्ध है। आप अपने 4 बेटों के नाम बताइए। उसके बाद 2 लड़का आ रहा है, 2 பையன் வந்து கொண்டிருக்கிறான்। लड़का 2 है ना, बहुवचन है ना। लड़का आकार शब्द है, सो आकार क्या बनेगा, ये बनेगा। आविल उड़िए पैचुल ஏன் பாருங்க, இப்போ 2 लड़के आ रहा வரக்கூடாது, रहे हैं। 2 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के आ रहे हैं। 2 लड़का आ रहा है नहीं आना चाहिए, 2 लड़के आ रहे हैं। अच्छा, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत अपना நிறைய பணம் இருக்கிறது। पैसा है नहीं, पैसे बहुत आ गया ना, इसलिए उसके पास बहुत पैसे हैं, அவரிடத்தில் நிறைய காசுகள் இருக்கின்றன। उसके बाद बहुत पैसे हैं। 4 पुस्तक का नाम बताओ, 4 पुस्तक का नाम बताओ। मैंने अभी भी कहा, कोई चीज़, कोई शब्द वो आकारार्थ हो चाहे इकारार्थ हो, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, बहुवचन हो अगर उसके आगे कोई कारक चिन्ह हो तब वो में बदलता है। यहाँ पर 4 पुस्तकों का आ गया ना, इसलिए यहाँ पर पुस्तकों आ जाएगा। 4 पुस्तकों का नाम बताओ, 4 पुस्तकों का नाम बताओ, 4 पुस्तकों का नाम बताओ। और आपके सभी गुरु का सम्मान करो, आपके सभी गुरु का सम्मान करो। यहाँ पर सम्मान करो, ठीक है। यहाँ पर आपके உங்களுடைய எல்லா குருக்களுக்கும் மரியாதை தமிழில் இப்போ அழகாக இருக்கிறது, बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पर आपके नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आपके, तुम तुम्हारे। यहाँ पर आप क्या चाहिए, अपने, अपने सभी गुरु का नहीं, गुरुओं का। अभी मैंने बताया, कोई संज्ञा बहुवचन हो उसके आगे कोई पर्सन आवे तो वो में बदल जाता है। अपने सभी गुरुओं का, अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो, अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो, अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। याद रखिए, ये सब देखने में शुद्ध सी लगती हैं लेकिन ये अशुद्ध मानी जाती हैं, इसलिए व्याकरणिक दृष्टि से हमें ऐसी अशुद्ध भाषा, ऐसे अशुद्ध वाक्य नहीं बोलना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, शुद्ध वाक्य लिखना चाहिए। और एक बार, राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहती थी, गलत है। राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते थे। दूसरा, रमेश सुरेश और सीता पढ़ती हैं, रमेश सुरेश और सीता पढ़ते हैं, बहुवचन है, पढ़ते हैं। ये पुस्तक मेरी है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए ये पुस्तक मेरी है। और मौसम बहुत सुहावनी है, मौसम पुल्लिंग शब्द है, मौसम बहुत सुहावना है। और लोकसभा की चुनाव इस साल होगी, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इस साल होगा, लोकसभा का चुनाव इस साल होगा। हमारे सभी अध्यापकों अच्छी हैं, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं। एक बात के लिए अध्यापक को अगर श्रेणिक मान लें तो हमारी सभी अध्यापिकाएँ अच्छी हैं। यहाँ पर पुल्लिंग है, ये 8 पाल आगे हुए, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं। और आप आपके 4 बेटे का नाम बताओ, आप अपने 4 बेटों के नाम बताइए, आप अपने 4 बेटों के नाम बताइए। 2 लड़का आ रहा है, 2 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के आ रहे हैं। उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत
पैसे 4 पुस्तक का नाम बताओ। 4 पुस्तकों के नाम बताओ। 4 पुस्तकों के नाम बताओ। आपके सभी गुरु का सम्मान करो। आप अपने सभी गुरु का सम्मान कीजिए या तुम अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। तुम अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो। या आप अगर रखेंगे तो आप अपने सभी गुरुओं का सम्मान कीजिए। यहाँ पर करिए नहीं, कीजिए। इस प्रकार सामान्य अशुद्धियाँ हम बराबर करते हैं। इन अशुद्धियों को निकाल करके हमें शुद्ध भाषा बोलने और लिखने की आदत डाल रखनी चाहिए। तभी लोग हमारा स्वागत करेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे और हमें मानेंगे। ये कुछ जानता है, ये कुछ भाषा जानता है, इसके पास कुछ somebody is there, something is there. இது கொஞ்சம் இருக்க என்று கருதுவார்கள். இல்லாவிட்டால் நம்மை கருத மாட்டார்கள். இல்லைனா அவன் முட்டை நீதி பேசுகிறானே, ஹிந்தியை தவறாக பேசுகிறானே, தவறாக எழுதுகிறான் என்று எண்ணுவார்கள். ஆகவே நாம் குடும்பம் வரைக்கும் தூய்மையாக பிழையின்றி பேச வேண்டும், பிழையின்றி எழுத வேண்டும். அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி. இது போன்ற பயிற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். மேலும் இது போன்ற மயக்கும் சொற்களை, மயக்கும் பிழைகளை நம்மை வருத்துவதை நாம் மாற்றிக்கொள்வோம். அப்படி மாற்றுவதற்கான வகுப்பை நான் அன்றாடம் தங்களுக்காக எடுத்து வைக்கின்றேன். இதில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் நீங்கள் சொன்னால் நானும் அதை மாற்றிக்கொள்ள தயாராகின்றேன் என்பதையும் நான் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी को आप पर थोपना मैं नहीं चाहता. आपकी जो मर्जी है वो आप मेरी मर्जी है. आप जो चाहते हैं उसे देना मेरा फ़र्ज़ है. நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை தருவதுதான் என்னுடைய கடமையை தவிர என்னுடைய கருத்துக்களை தங்கள் மேல் டூசனா தோப்பனா துணிப்பது திணிப்பது அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். தங்களுக்கு வேண்டியதை கீழே कमेंट्स நீங்கள் எழுதுங்கள். அது எனக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். आप नीचे कमेंट्स में अपना विचार मुझे बताइए, दीजिए, ताकि मैं अपने को सुधार सकूं. वो मेरे लिए एक खाद के समान, எனக்கு அது உரமாகும். தங்களுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு வரமாகும், அதுவே எனக்கு உரமாகும். என்னுடைய மொழியை நான் வளப்படுத்த தகுந்த உரமாக வரமாக எனக்கு அமையும் என்று சொல்லி நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை இதே போன்ற தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். ஏனென்றால் தொடர்ந்து இது போன்ற கருத்து பிழைகளை சொல்வது என்னுடைய கடமையாகிறது. ஆகவே இதை நீங்கள் சுமையாக கருத வேண்டாம், சுகமாக கருதுங்கள். கருதி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், நபர்களுக்கும் பகிருங்கள் சொல்லி நாளை இதே போன்ற ஒரு மயக்குச்சக்குடன் தங்களை சந்திக்க வருகிறேன். அது வரைக்கும் விடைபெறும் தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. இது போன்ற சிறந்த கருத்துக்களோடு நாளை சந்திக்கின்றேன். ऐसे ही कुछ शुद्ध वाक्यों का शुद्ध करने के उद्देश्य से मेरा वर्ग होगा. अब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तमिलनाडु, तिरुप्पूर. धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी. जय हिंद. कहाँ हमारा भरना है.